السلام علیکم ناظرین۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، دل کرتا ہے کہ چیخ کر کہہ دے بس اب اور نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر راستہ اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ دل کے اندر عجیب سا بوجھ ہے، آنکھوں میں وہ سکون نہیں اور دل میں ہر لمحہ الجھن ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ صبر کرو، وقت بدلے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید وقت بدلنے والا ہی نہیں۔ کیا آپ بھی یہ سب محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، کہ آپ کو کوئی سمجھتا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں چنا اتنی تکلیف دینے کے لیے؟ اگر ہاں تو رک جائیں، ایک لمحے کے لیے گہری سانس لیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رونا، آپ کی تکلیف، آپ کا ٹوٹنا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ احساس کہ آپ تھک چکے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور جو زیادہ برداشت کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سوچیں، آپ کی یہ آزمائش اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے، اور ہر تکلیف کے بدلے اللہ آپ کے لیے رحمت لکھ رہا ہے۔ یہ وقت رکنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اللہ کی رحمت سے جڑنے کا۔ اللہ کی مدد آپ کے دل کو سکون دے گی، بلکہ آپ کو ایسا حوصلہ اور طاقت دے گی کہ آپ کی مشکلات بھی ہلکی محسوس ہوں گی۔ یہ نکات آپ کی زندگی میں روشنی اور امید لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا اور محسوس کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیں پہلے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اللہ کو اپنا رازدار بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے اندر کا درد بتائیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملتا جو واقعی سمجھ سکے۔ دل کے اندر دبے ہوئے دکھ، بے چینی اور سوالات انسان کو اندر ہی اندر تھکا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ وہ ہے جو آپ کی ہر بات جانتا ہے، جو کسی سے آپ نہیں کر سکتے۔ وہ ہر فریاد سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیجئے، جب ان پر آزمائش آئی، ان کا جسم بیمار ہو گیا، اولاد چھن گئی، مال ختم ہو گیا اور لوگ ان سے دور ہو گئے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ سے رجوع کیا۔ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں صحت دی، ان کی تکلیف دور کی اور ان کا مقام بلند کر دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں ہیں۔ کوئی کھانے کو ترس رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی بیماری کے علاج کے لیے پریشان ہے، اور کوئی اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، لیکن ان کے چہرے پر امید کی جھلک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ آپ بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے دل کھول کر باتیں کریں۔ رات کے سوتے وقت جب سب سو رہے ہوں تو سجدے میں گر جائیں، رونے کو اپنا معمول بنا دیں، ہر سب دکھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور دیکھیں کیسے آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ بے شبہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آزمائش کو اللہ کی مدد سمجھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے انبیاء
को क्यों बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला। ये वो हस्तियाँ थीं जो अल्लाह के सबसे करीब थीं, फिर भी उन्हें मुश्किलात में बर्दाश्त करनी पड़ी। ऐसा क्यों? इसलिए कि आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहाँ दूसरों को ले जाना मुमकिन नहीं होता। सोचें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर उन्हें अपने ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम बना दिया, झूठे इल्ज़ाम में कैद कर दिया, लेकिन वो हर लम्हा अल्लाह से जुड़े रहे, सब्र करते रहे और फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाह के करीब कर दिया, उन्हें इज्जत दी, उन्हें काम दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फिर बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आपकी मुश्किलात भी इसी तरह आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। ये मुश्किलात आपको मजबूत कर रही हैं। अल्लाह को आपकी हर तकलीफ़ के बारे में पता है, आपको अल्लाह के करीब कर रही है। हर वो तकलीफ़ जो आप सह रहे हैं अल्लाह के यहाँ महफूज है। हर आंसू जो आप बहा रहे हैं वो आपके लिए जन्नत के दर के अंदर दर्ज बुलंद कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया है, आप अकेले हैं या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये याद रखें कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नज़रअंदाज नहीं करता। आपकी दुआ का जवाब उस वक्त आता है जब आपके लिए सबसे बेहतर होता है। तो अपने दिल को मजबूत करें, क्योंकि हर आजमाइश के बाद एक नया आगाज़ होता है। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी आने वाली है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें। तीसरा तरीका, अल्लाह पर एतमाद रखें। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमने जितनी मेहनत की इतना काफ़ी नहीं था, जो कुछ हम चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन ये याद रखें कि जो कुछ भी आपकी तकदीर में लिखा है वो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर शिकस्त एक मकसद के तहत है। अल्लाह ने आपके लिए वो सब कुछ लिखा है जो आपको इस दुनिया में चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल लें, जिन्हें अल्लाह ने फ़िरौन की ताकत से टकराने के लिए मुंतखब किया था, लेकिन पहले उन्हें दरिया की लहरों के दरमियान खड़ा किया गया जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दुआ की तो दरिया ने रास्ता खोल दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई और उन्हें कामयाबी और फलाह दी। आपका रास्ता भी खुलेगा, चाहे आपको अभी तकलीफ़ों की समुंदर में गर्क होना महसूस हो रहा हो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें, वो बेहतर जानता है जो आपके लिए बेहतरीन होगा। चौथा तरीका, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब मुश्किलात हमें घेर रही होती हैं, जब दिल टूट रहा होता है और हमें लगता है कि हम अब मज़ीद नहीं चल सकते, तो लोग हमें कहते हैं कि सब्र करो। लेकिन असल सब्र का मफ़हूम ये है कि सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना ही नहीं, बल्कि ये है कि आप अल्लाह की हर बात पर भरोसा रखें और यकीन करें कि हर मौसम के बाद खुशी आती है, जैसे ख़ज़ां के बाद बाहर आती है। और अल्लाह का वादा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। याद रखें, जब आप समुंदर की गहराइयों में डूबते हुए भी अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं तो वो आपको उस दलदल से निकाल कर साहिल तक ले आता है। सब्र का ये मतलब नहीं कि आप अपने दर्द को छुपाएं, बल्कि ये कि आप इस ज़ात पर भरोसा रखें जो सबसे बड़ी ताकत रखती है। सब्र का फल कभी ज़ाया नहीं जाता और अल्लाह का वादा है कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। जैसे समुंदर की लहरें कभी ना ख़त्म होने वाली मालूम होती हैं, लेकिन एक दिन वो थम जाती हैं, वैसे ही आपकी मुश्किलात भी ख़त्म होंगी और सुकून आ जाएगा। यकीन रखें, आप मजबूत हैं, अल्लाह आपके साथ है और आपके सब्र का फल मीठा होगा। पांचवा तरीका, अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करें। मुश्किल में हमें अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह से जुड़ना वो सुकून देता है जो इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जब आप अल्लाह से बात करते हैं, उसे अपनी परेशानियों और खुशियों से आगाह करते हैं, तो वो दिल में एक अजीब सुकून और इत्मीनान
डाल देता है। याद रखें, रोज़ाना अल्लाह का ज़िक्र करें और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल में सुकून डाले। याद रखें, आपके दिल में सुकून डाले। याद रखें, जैसे ख़ज़ां के बाद बहार आती है, वैसे जब आप अल्लाह के साथ अपने तल्लुक़ मज़बूत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी आती है। अल्लाह की रज़ा में सुकून है और यही तल्लुक़ आपको वो ताकत देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डाल देता है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह के करीब जाएंगे, इतनी ही ज़्यादा आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, आपके हर दुख को सुनता है और उसकी मदद हमेशा आपके साथ है। जैसे दरिया की गहराइयों में जो मोती छुपे होते हैं, वैसे ही अल्लाह के साथ जुड़ने से आपकी ज़िंदगी में छुपी हुई खुशियाँ और सुकून ज़ाहिर होगा। यकीन रखें, अल्लाह के ख़ास बंदे हैं और आप इस तल्लुक़ को मज़बूत करें तो आपकी ज़िंदगी में वो सुकून आएगा जो आप हमेशा तलाश कर रहे थे। अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह से दुआएं करें और अपने दिल में यकीन रखें कि वो हमेशा आपके साथ है। आपकी वीडियो में हमने 5 अहम निकात शेयर की हैं जो आपको हौसला देंगे और आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे। अल्लाह को अपना राज़दार बनाएं, आज़माइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें, अल्लाह पर भरोसा रखें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह के साथ मज़बूत ताल्लुक़ कायम करें। दुआ है कि अल्लाह हमें अतायत दे, हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान डाले, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बर करें उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन।